Let us discuss the answers of the questions asked in the question bank of Science and Technology Part 2, Lesson 8, Cell Biology and Biotechnology. Question 1A क्या रहता है? Choose the correct option. और choose the correct option of lesson number 8 Cell Biology and Biotechnology जो है वो question number 83 से start होता है. Question number 83 में क्या दिया है? At the earlier stage of development of organism in the form of mass of a cell which are almost alike, those cells are called dash. तो करेक्ट आंसर कौन सा? ऑप्शन ए स्टेम सेल्स. ये जो है वो पेज नंबर 88 में दिया हुआ है. पेज नंबर 88 में द आंसर इज गिवन. एट द अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट organisms is in the form of a mass of cells. All the cells in the mass are almost alike. Those cells are called as stem cells. तो आंसर क्या है? स्टेम सेल्स. 84th question, which of the following is an important requirement in organ transplantation? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी ऑल अबाउ. मतलब ये तीनों भी इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. दैट इज ब्लड ग्रुप ऑफ रेसिपिएंट, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, डिजीज ऑफ डोनर, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड एज ऑफ डोनर. तो ये तीनों इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट. सो आंसर क्या है? ऑल अबाउ. ये पेज नंबर 890 में दिया है. वेरियस फैक्टर्स लाइक ब्लड ग्रुप, diseases, disorders, age, etc. of the donor and the recipient need to be paid attention during transplantation. 85th, choose the correct option. Availability of dash is an important requirement in organ transplantation. तो correct answer कौन सा है? ऑप्शन सी, that is donor. तो आंसर क्या है? डोनर. दिस इज ऑल्सो गिवन इन पेज नंबर 90. अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. तो आंसर क्या है? डोनर. 86, choose the correct option. The disease related with the synthesis of insulin is dash. ये लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1C सेम ही क्वेश्चन है. इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी डायबिटीज़. ये पेज नंबर 93 में दिया है. द हार्मोन इंसुलिन इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़. तो आंसर क्या है? डायबिटीज़. 87, choose the correct option. Transgenic raw potatoes generate immunity against dash disease. तो आंसर क्या है? कॉलेरा. तो ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन बी कॉलेरा. दिस इज गिवन इन पेज नंबर 94. Consumption of these raw potatoes generate the immunity against cholera. So what is the answer? Cholera. 88, choose the correct option. Dash have valuable contributions in the green revolutions in the USA. तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन ए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग. ये जो सेंटेंस है वो पेज नंबर 96 में दिया हुआ है. डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग यूएसए हैव वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन इन ग्रीन रेवोल्यूशन. 89, choose the correct option. Methods like artificial insemination and embryo transplantation are mainly used for dash. ये एक्सरसाइज लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन 1 सब क्वेश्चन ए सेम ही क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन ए एनिमल हस्बेंड्री. ये पेज नंबर 93 में दिया है. टू मेन मेथड्स हैज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र are used in animal husbandry. तो आंसर is what? Animal husbandry. 90th, choose the correct option. Cell dash starts from the 14th day of conception. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी डिफ्रेंसिएशन. ये पेज नंबर 89 में दिया है. Cell differentiation starts from the 14th day of conception. 91st, choose the correct option. Dash is the revolutionary event in biotechnology after cloning. ये लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन 1 सब क्वेश्चन बी सेम ही क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन सी स्टेम सेल रिसर्च. ये पेज नंबर 89 में दिया है. इन बायोटेक्नोलॉजी स्टेम सेल रिसर्च. तो आंसर क्या है? स्टेम सेल रिसर्च इज़ अ रेवोल्यूशनरी इवेंट आफ्टर क्लोनिंग. 92nd, choose the correct option. Biotechnology integrated the toxin which is fatal for dash was produced in leaves and balls of cotton. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बॉलवॉर्म. ये पेज नंबर 92 में दिया है. ड्यू टू द टॉक्सिन विच इज़ फेटल फॉर बॉलवॉर्म was produced in leaves and balls of cotton. तो आंसर क्या है? बॉलवॉर्म. 93rd, choose the correct option. The government of India has encouraged dash for improving productivity by launching the program
NKM16। ये लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन डी सेम ही क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एक्वाकल्चर। ये पेज नंबर 97 में दिया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ वोट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय encouraging the people for pisciculture. Pisciculture means aquaculture by launching the program Neel Kranti Mission 2016. In short, it is written as NKM16. 94th, choose the correct option. Dash are present in the umbilical cord by which the fetus is joined to the uterus of the mother. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्टेम सेल्स। ये पेज नंबर 89 में दिया हुआ है। स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन द umbilical cord by which the fetus is joined to the uterus of the mother. 95th, choose the correct option. For the purpose of preservation, stem cell samples are kept in dash. तो आंसर क्या है ऑप्शन डी लिक्विड नाइट्रोजन। ये पेज नंबर 89 में दिया है। For the purpose of preservation, stem cell samples are carefully collected and kept in small sterile vials. Those vials are kept in liquid nitrogen. तो आंसर क्या है लिक्विड नाइट्रोजन। 96th, choose the correct option. Phenylketonuria arises due to genetic changes in dash cells. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए लिवर। तो ब्लैंक में क्या आएगा लिवर। ये पेज नंबर 94 में दिया है। Phenylketonuria, that is PKU, arises due to genetic changes in hepatocytes. Hepatocytes means what? Liver cell. तो आंसर क्या है लिवर। 97, choose the correct option. Dash organisms are used as biofertilizers. और इसका राइट आंसर कौन सा है ऑप्शन बी नॉस्टॉक। ये पेज नंबर 93 में दिया है। नॉस्टॉक आर यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर। सो आंसर क्या है नॉस्टॉक। 98th, choose the correct option. Stem cells are not found in dash. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लिवर। लिवर में स्टेम सेल्स नहीं रहता है। इट इज़ प्रेजेंट इन अम्बिलिकल कॉर्ड, ब्लास्टोसिस्ट एंड एडिपोज टिश्यू। ये पेज नंबर 89 में दिया है। स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन अम्बिलिकल कॉर्ड। स्टेम सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्लास्टोसिस्ट, बोन मैरो, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन लिवर इसमें नहीं दिया है। सो स्टेम सेल्स आर नॉट फाउंड इन। आंसर क्या है लिवर। 99th, choose the correct option. The leaves of the transgenic variety of dash are given to chew to prevent the cattle from contracting viral disease rinderpest. तो correct answer कौन सा है ऑप्शन डी tobacco. This is given in page number 94. Indian Institute of Science has developed a transgenic variety of tobacco. If cattle feed upon leaves of this plant, they do not contract a viral disease rinderpest. तो answer क्या है tobacco. Dolly the sheep, born through cloning technique, has grown in the womb of a dash sheep. तो इसका आंसर है ऑप्शन ई स्कॉटिश। ये पेज नंबर 95 में दिया हुआ है। The ovum was allowed to develop in the uterus of Scottish sheep and thereby the dolly had been born. 101 जो फिलअप है वो लेसन नंबर 8 का लास्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन है। इसमें क्या दिया The idea of using microorganisms to destroy oil spills was first suggested by an American scientist of Indian origin. इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती। ये पेज नंबर 96 में दिया हुआ है। Cleaning the ocean without any harm to environment in cheaper way was become possible with the help of oil digesting and fast multiplying bacteria. India-born American citizen and scientist Dr. Anand Mohan Chakravarti had for the first time suggested the use of such microbes. तो आंसर क्या है डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती। क्वेश्चन 1b, फाइंड एन ऑड वन आउट। लेसन नंबर 8 का जो ऑड वन आउट है वो क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा है फ्रॉग, अर्थवॉर्म, पिंक बॉलवॉर्म, इंसेक्टिवरस बर्ड्स। तो इसका ऑड वन आउट क्या है पिंक बॉलवॉर्म। वाई पिंक बॉलवॉर्म? क्योंकि पिंक बॉलवॉर्म इज़ अ पेस्ट विच अफेक्ट्स द क्रॉप प्लांट्स वेर एज रेस्ट ऑफ देम बाकी सब जो है इट इज़ हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर। तो ऑड वन आउट कौन सा है पिंक बॉलवॉर्म। क्वेश्चन नंबर 37 ऑड वन आउट जो है वो लेसन नंबर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन से ये क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है थियोफ्रास्टस, प्लिनी, जॉन रे, लेनुएस, डॉब्जेंस्की। तो ऑड वन आउट क्या है इधर डॉब्जेंस्की। इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 62 में मिल जाएगा।
प्लिनी, जॉनरे, लियोनस और थियोफ्रास्टस जो है वो एनिमल क्लासिफिकेशन कैसे किया था? बाय आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। और डॉब्जेंस्की जो है उसने कैसे क्लासिफाई किया था एनिमल्स को? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एवोल्यूशन। तो ऑड वन आउट कौन सा है? डॉब्जेंस्की। 38th odd one out, DDT, यूरिया, मैलोथियन, क्लोरोफायरोफोस। इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है? यूरिया। वाई यूरिया? यूरिया इज अ केमिकल फर्टिलाइजर वेर इज रेस्ट ऑफ देम आर केमिकल पेस्टिसाइड्स। 39th ऑड वन आउट, डायबिटीज़, अनीमिया, ल्यूकेमिया, थैलेस्मिया। इसमें ऑड वन आउट क्या है? डायबिटीज़। वाई डायबिटीज़? बिकॉज डायबिटीज़ इज अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, वेयर हैज the others are disorders which are related to blood. तो odd one out इधर क्या है? डायबिटीज। 40th odd one out, ड्राइंग, सॉल्टिंग, सोकिंग विथ शुगर, कुकिंग। इसमें ऑड वन आउट क्या है? कुकिंग। ड्राइंग, सॉल्टिंग, सोकिंग विथ शुगर जो है दे आर द मेथड्स विच आर यूज्ड इन प्रिजर्वेशन, एंड कुकिंग इज cannot in cooking we cannot preserve the food for a very long time, so odd one out is what? Cooking over here. 41st odd one out, DDT, मैलिथियन, क्लोरोफायरोफोस, ह्यूमस। यहाँ पे ऑड वन आउट क्या है? ह्यूमस। वाई ह्यूमस? क्योंकि DDT, मैलिथियन और क्लोरोफायरोफोस जो है दे आर केमिकल पेस्टिसाइड, मगर ह्यूमस जो है इट इज़ नॉट अ केमिकल पेस्टिसाइड्स। 42nd जो ऑड वन आउट है वो लेसन नंबर 8 का लास्ट ऑड वन आउट है। इसमें क्या दिया है? ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन। यहाँ पे ऑड वन आउट क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, मगर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इट इज़ रिलेटेड टू इंडस्ट्री। क्वेश्चन 1b, नेम द फॉलोइंग। लेसन नंबर 8 का नेम द फॉलोइंग जो है वो क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट होता है। व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 22? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड ऑर्गेनल्स ऑफ सेल्स। तो इसका आंसर क्या है? साइटोलॉजी, और यू कैन ऑल्सो राइट सेल बायोलॉजी, कोई भी एक लिख सकता है, या तो सेल बायोलॉजी नहीं तो साइटोलॉजी। ये पेज नंबर 88 में दिया हुआ है। Earlier we have studied the structure, types and organelles of the cell. This is called as cell biology or cytology. 23rd question, donation of organs such as eyes, heart after death is known as what? Posthumous donation. ये पेज नंबर 90 में दिया हुआ है। Organs like liver, heart, eyes can be donated after death only. This has led to the emergence of concepts like posthumous, that is after death donation of body organs. तो आंसर क्या है? Posthumous. 24th, नेम द फॉलोइंग। यूज़ ऑफ नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स। इसका आंसर है टिश्यू कल्चर, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स। ये पेज नंबर 91 में दिया है। यूज़ ऑफ नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी, इसका एग्जाम्पल्स क्या है? टिश्यू कल्चर, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स एक्सेट्रा। 25th, नेम द फॉलोइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इसका आंसर क्या है? बीटी, कॉटन, बीटी, ब्रिंजॉल, गोल्डन राइस। ये पेज नंबर 92 में दिया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या है? बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजॉल, गोल्डन राइस। 26th, नेम द फॉलोइंग बैक्टीरियाज दैट कैन बी यूज्ड एज मैन्योर। इसका आंसर क्या है? राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, नॉस्टॉक, एनाबेना। ये पेज नंबर 93 में दिया हुआ है। Biofertilizer, mainly the bacteria like Rhizobium, Azotobacter, Nostoc, Anabaena are used as biofertilizer, that is they are used as manures. 27th, name the following. The number of different types of cells in the human body that are formed from embryonic cells. इसका आंसर क्या है? 220. ये पेज नंबर 89 में दिया है। 220 different types of cells in human body are formed from single type cells, that is embryonic stem cells. तो आंसर क्या है? 220. 28, नेम द फॉलोइंग ऑर्गन्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इसका आंसर क्या है? किडनी, स्किन, लिवर, हार्ट, आइज एक्सेट्रा। ये पेज नंबर 90 में दिया हुआ है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में कौन सा ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकता है? किडनी, स्किन, लिवर, हार्ट, आइज। 29th, name the following cells that are present in the initial development stage of zygote, that is formed by the union of male and female gametes. इसका आंसर है embryonic stem cells. ये जो है वो पेज नंबर 88 और 89 में मिलेगा। 88 में यहाँ पे दिया न्यू ऑर्गेनिज्म इज formed from the zygote that is formed by the union of male and female gamete. At the earliest stage of development, organism is in the form of a mast cells.
mass of cells, all the cells in that mass are almost alike, those cells are called as stem cells. अभी stem cells जो है वो दो टाइप का है, you can see over in page number 89. Depending upon source, stem cells are of two types, embryonic stem cells and adult stem cells. जो embryonic stem cells जो है it is formed by the division of the zygote. तो आंसर क्या है, embryonic stem cells. 30th नेम द फॉलोइंग जो है वो लेसन नंबर 8 का लास्ट नेम द फॉलोइंग है. इसमें क्या दिया है, मेडिसिनल प्लांट्स यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन फॉर कॉफ्स. इसका आंसर है अडुल्सा. ये पेज नंबर 99 में दिया हुआ है. अडुल्सा इज़ यूज्ड फॉर व्हाट, कॉफ्स. तो कॉफ के लिए अडुल्सा यूज़ किया जाता है. तो आंसर है अडुल्सा. क्वेश्चन 1b रिलेट द फॉलोइंग यानी को रिलेट द फॉलोइंग है. और लेसन नंबर 8 का को रिलेट द फॉलोइंग जो है वो क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है, वाइट रेवोल्यूशन इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन है. तो ब्लू रेवोल्यूशन क्या है, इंक्रीज इन कल्टिवेशन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. ये पेज नंबर 97 में दिया है. प्रोडक्शन ऑफ वेरियस यूजफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज ब्लू रेवोल्यूशन. तो ब्लू रेवोल्यूशन क्या है, increase in the cultivation of aquatic organisms. 24th क्वेश्चन, वाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन है. तो ब्लू रेवोल्यूशन क्या है, फिशरीज. ये पेज नंबर 27 में दिया हुआ है. ब्लू रेवोल्यूशन में मराइन एंड फ्रेश वाटर फिशरी इज पॉसिबल ऑन लार्ज स्केल. तो ब्लू रेवोल्यूशन इज व्हाट, फिशरीज. रिलेट द फॉलोइंग ऑफ लेसन नंबर 8 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया, एपिकल्चर अगर हनी बीज है तो कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट क्या है, अडुल्सा एंड नीम. ये पेज नंबर 99 में दिया है. कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स में क्या आएगा, अडुल्सा और नीम. अडुल्सा एंड नीम इज़ द आंसर.